Hey, what is up everyone? This is Geet and I'm meeting you guys after a long time because I was taking a break. No, I'm just kidding. मेरे पास कोई ideas नहीं थे वीडियो बनाने के and I was just reading around and I was too much stuck in the work, but that is the other thing. काम तो सबके पास होता है. So today we're going to talk about the 14 rules जो मैं पढ़ रहा था and I found it very interesting to make a dangerous man. Yeah, as a man, we have so much of responsibilities and we have to be strong, appealing, and powerful. तो एक मैन का एक परफेक्ट मैन का एक परसेप्शन होता है कि he should be powerful, he should be strong, he should be dangerous, he should be able to pull out anything that is given to him. और उसी बारे में हम बात करने वाले हैं. So stay tuned. This is Geet and welcome to the channel. On the number one, the most important thing is a man should know how to fight. Literally a physical fight. I know that these are the times when the people fight with words. लोग बातों से, conversation से conflict solve करते हैं, and in these times it's not advisable to be physical with someone, right? ऐसे physical fight करोगे, you will end up in jail. But still you should know how to fight, not because you want to fight with someone, but it gives you a sense of confidence कि बहुत सारा confidence देता है वो आपको. और इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, इट मेक्स यू अ फियरलेस पर्सन कि कल सुबह मेरे को कोई मेरे पे हाथ उठाएगा, आई नो दैट हाउ टू अटैक हिम, आई नो दैट हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ. और वो एक कॉन्फिडेंस के लिए यू शुड लर्न. आई नो दैट यू आर नेवर गोइंग टू एंड आई होप यू नेवर नीड टू यूज दिस पावर, बट यू शुड लर्न हाउ टू फाइट. It'll give you an amazing amount of confidence. Number two, it is stop helping everybody. आप यार सब लोगों को हेल्प नहीं कर पाओगे एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल टू हेल्प ईच एंड एवरी वन अराउंड यू, स्पेशली टू द पीपल हु आर हैविंग दिस विक्टिम मेंटालिटी बट दे आर नॉट रियली अ विक्टिम ऑफ एनीथिंग, और जिनको बस दूसरों से काम करवाने की ही आदत होती है. यू शुड नॉट बी हेल्पिंग दोज पीपल. इंस्टेड find the people who really need your help, like a junior who is working hard a lot and he wants some help to get some things done. Helping that person would be beneficial and helping this person will give some fruitful results. But if you start helping each and everyone around you, I mean the people who doesn't even need the help and who don't actually need any help but they are too much lazy, so it doesn't yield any result. So don't help each and everyone around you. On the number three, it is be masculine. Gym jao ya dole shole banao because it's really important. आप देखोगे अपने आसपास, सो द बिगेस्ट, स्पेशली इन दिस आईटी इंडस्ट्री, कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम द पीपल फेस इज मोरबिड ओबेसिटी. लोग मोटे होते जा रहे हैं एंड नो वन wants to care about their health because they are too much stuck in their work. बहुत सारा काम है और sedentary lifestyle है और बैठे ही रहते हैं लोग. In these times you should find some time to go to the gym, even if you go for like 15 to 20 minutes and do some 2-3 sets of some lifting, some strength training, it'll be sufficient. But आप जाओ. मोस्टली हम क्या सोचते हैं कि भाई यार जिम के लिए तो 2 घंटे लग जाते हैं, 1.5-2 घंटे, थोड़ा टाइम आने में लगेगा, थोड़ा टाइम जाने में लगेगा, फिर मैं थक जाऊंगा. सो दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस. योर बॉडी इज मेड फॉर अडेप्टिंग एनीथिंग दैट इज गिवन टू इट. तो आप स्टार्ट करो जिम जाना. I mean, first few weeks will be horrible, but after that, once you get a habit of it, it'll be really good. And with that, you will be much more masculine. I mean, it's a long journey to be really masculine. पर आपको वो अंदर से फील होने लगेगा कि यार मैं स्ट्रांग बनता जा रहा हूँ, मेरी बॉडी का शेप चेंज होता जा रहा है. सो जस्ट डू दैट, स्टार्ट दैट राइट नाउ. On the number four, it is learning to say no. In this IT industry, I'll mostly talk about the IT industry because from past 7 years I've been in this corporate industry. और मैंने देखा है कि people don't say no to anything.
whatever they ask for. They'll be such a delightful person and they'll do that, which is wrong, right? You should not say yes to the things you do not want to like to do. If it's work, it's okay. But everything, saying yes to everything is very bad for your well-being. कि भाई सामने वाले को बुरा लग जाएगा, अरे यार लगने दो. It's okay if someone feels bad. If you want to make everyone happy, go out and sell ice creams. ये मैंने कहीं किसी मूवी में देखा था या पढ़ा था, but it's a really good advice. अगर आपको सबको खुशी करना है तो यार बाहर जाके आइसक्रीम बांटो सबको. If you want to do some work, if you want to do something meaningful in life, there are a lot of people जिनको आप दुखी करोगे and that is completely fine. So learn to say no to the things you want to say no to. Okay. On the number 5, and I already mentioned it in my previous point, is learn, train your body and train your mind. लर्न द वर्कआउट्स, लर्न द माइंडफुलनेस. आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए. गो टू द जिम, go and do some physical exercise in order to have a good body and do some mindful exercise. यार शांति से 5 मिनट बैठो, that is also a meditation, or that will be really beneficial to you in order to understand who you are and in order to like calm yourself down. बहुत ही मुश्किल है, मैंने बहुत ट्राई किया बिकॉज आई एम लाइक अ वेरी क्यूरियस माइंड. तो मैं बहुत ही मैं रेस्टलेस रहता हूँ और इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ पड़ती है टू डू मेडिटेशन. तो शांति से बैठ के रियलाइज़ करना कि मेरी ब्रेथ कैसे काम कर रही है, मेरा मूड कैसा है, दैट्स अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल द टाइम. तो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग माइंड इज़ द कॉर्नरस्टोन टू अ स्ट्रॉन्ग बॉडी. अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे और आपका बॉडी उससे अलाइन नहीं होगा. सो मेक श्योर दैट यू ट्रेन इनफ एंड you do meditation so that you can get better. The number 6, it is staying true to whatever you believe. जनरली क्या होता है कि हम कुछ चीज़ में बिलीव करते हैं और 2 लोग आके ऐसा बोले कि भाई ये तो गलत है, देन हम उस चीज़ को ही डाउट करने लगते हैं. समटाइम्स यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे लोगों के हिसाब से चले. like if someone says, if I believe in something that I can become a magician, ओके और मैं मैजिक ट्रिक्स सीख रहा हूँ और 2 लोग आके बोले कि यार इसमें तो पैसे नहीं हैं, इट्स लाइक तू सर्कस में काम करेगा, देन आई स्टार्ट डाउटिंग माई सेल्फ कि भाई यार ये बंदा तो सही बोल रहा है कि इसमें कोई करियर नहीं है, मैं इतने पैसे नहीं बना पाऊँगा. बट यू माइट हैव सीन दैट देयर आर सो मेनी मैजिशियंस हु मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड लाइक समटाइम्स इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी. तो आप मे बी उसको एक एज अ हॉबी परस्यू कर रहे हो और ये बंदा आके बोलता है कि यार इससे अच्छा है कि तू कुछ और चीज़ कर ले, पॉडकास्ट सुन ले, विच इज़ रियली बैड. तो वॉट एवर यू बिलीव, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, हैव 100% belief in that. The comments, the negative comments from the other people, it's just some sort of noise which you need to avoid. On the number 7 is be ruthless. Ruthless in what? In pursuit of your goals. आपने नरूटो देखी होगी. नरूटो से मैंने एक ही चीज़ बहुत ही बढ़िया सीखी है कि उसको पता नहीं था कि ही इज़ द सन ऑफ रियली इंपॉर्टेंट पर्सन, द होकागे, और वो सबसे मतलब सब लोगों ने उसको निग्लेक्ट किया था. बट ही हैड दिस sheer will that he will do something in life. He will one day become an Hokage. और उसने वो साबित करके दिखाया और बाद में उसे बहुत टाइम बाद पता चला कि he was already an important person. But he was ruthless about learning the things and about becoming the best version of himself. The same thing I want to tell you is that 2 लोग आके बोले कि you cannot do something तो मत सुने. That's just a noise. Be ruthless in pursuing what you want. उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स को आप निग्लेक्ट करें, बट यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग इन योर गोल. रोज़ के एक जर्नल बनाए और यू कैन document that how much time did you spend in your goal pursuit.
Number 8, it is stop wasting time on meaningless bullshit. हमारे कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि यार गॉसिप्स बहुत चलती रहती है और हम बैठ के घंटों तक वो गॉसिप के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके बाद हमारा ही दिमाग ख़राब हो जाता है बिकॉज वी फील लाइक एम्पैथेटिक टू द अदर पीपल हु टू whom द रॉन्ग थिंग्स आर हैपेंड और जो कंप्लेन कर रहा है एंड वी फील लाइक यार ये तो गलत है, मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं क्या करता, और पूरी स्टोरी बनाने लगते हैं कि यार what would I have done if this kind of thing might have happened to me. मैं ये जवाब देता, मैं वो जवाब देता, और वही चीज़ों की वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, आपका टाइम ख़राब हो जाता है. सो डू नॉट इंडल्ज टू मच इनटू दिस BS. आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि यार पूरे 2-2 3-3 घंटे बस यही बात करते रहो बिकॉज अगेन दिस इज़ जस्ट द नॉइज़. क्या हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है कुछ ऐसा, एंड यू आर ऑलरेडी like thinking about the outcomes, you are thinking about the possible actions that you'll make which you will never make if that thing really happens to you. So it's advisable to stay away from these kind of things. On the number 9, it is making strong connections. Your network is your net worth. दोस्त बनाएं पर ऐसे भी कनेक्शंस बनाएं जो आपको आगे जाके काम आ सकते हैं, जो आपको आगे जाके आपकी ग्रोथ में यूज़फुल हो सकते हैं. जैसे कि इफ़ यू आर इन बिजनेस और आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के साथ आप मिंगल कर सकते हैं जो आपको हेल्पफुल हो सके. जैसे कि कोई सेल्स में है और आपका सेल्स बेटर कर सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई ऐसा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसकी आपको ज़रूरत हो. तो कनेक्शंस इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस विल बी रियली हेल्पफुल. और लाइफ की हर चीज़ में आपको कनेक्शंस हेल्पफुल होते हैं. एनीथिंग you mention anything and I can tell you that if you have better connections you can have much better experience on the things that you are going to have. On the number 10, it is becoming extremely honest. आपको यार fully honest बनना है आपके साथ, क्योंकि आप अपने आप में बिलीव कर रहे हो, जो मैंने ऑलरेडी बताया है. सो आई हैव सीन सो मेनी पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ दैट यार 100% ऑनेस्ट नहीं रह पाते हैं अपने साथ. हमने कुछ डिसाइड किया और कोई एक छोटी सी चीज़ आ गई, कोई बेकार सी स्टोरी की वजह से हम वो चीज़ नहीं करते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ कीप्स ऑन हैपनिंग और हम वो चीज़ छोड़ देते हैं. और दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द 99% मिडिल क्लास पीपल की हम छोड़ देते हैं. और मैंने भी बहुत सारी बार ऐसा किया है दैट आई लेफ्ट ऑन माई ड्रीम्स. मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, मुझे बहुत कुछ करना था और मैंने वो छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एडिक्शन. और आप कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी रीज़न बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से तुम वो चीज़ छोड़ सकते हो. तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, नो दैट यू वॉन्ट टू डू समथिंग एंड यू हैव टू डू इट आउट ऑफ ऑल द एम्बेरसमेंट, आउट ऑफ ऑल दिस फियर ऑफ फेलियर. कुछ भी हो जाए यार, मैं ये करके रहूँगा. सो बिल्ड दैट mindset. It will be really important and it will be really helpful to you to become a better version of yourself. On the number 11, one of the most important thing is never settle for less. आपको पता है कि आप इतना डिज़र्व कर रहे हो, आप इतनी सैलरी डिज़र्व कर रहे हो, आप इतना प्रॉफिट डिज़र्व कर रहे हो, या फिर इतना शेयर किसी चीज़ में, वेदर इट्स अ फिजिकल थिंग और कुछ भी हो, आप डिज़र्व कर रहे हो, देन you should be honest to yourself and you should be confident enough that आप नहीं सेटल करोगे उतने में. कभी एडजस्ट करना पड़ता है पर नेवर सेटल कि यार इतना हो रहा है तो ठीक है, आई एम ओके विथ इट, चलो इतना तो हो रहा है. Learn to say no to such opportunities and look for the opportunities which will feed, which will satisfy your needs. So never settle for less. नंबर 14 और ये लेक्चर का लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग. रिसेंटली मैं भगवद गीता के कुछ श्लोक्स पढ़ रहा था और उसमें श्री कृष्ण ने बोला था कि when you try to control something it will give you stress. When you try to control your future, that is the root of stress. Don't try to control anything, especially your future. आपको फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं है, एंड यू मस्ट नॉट नो, राइट? तो
कंट्रोल करना बंद करो. जो भी हुआ, जो भी खराब एक्सपीरियंसेस हुए, ओके, इट्स ओके, मूव ऑन एंड गो टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, गो टू योर नेक्स्ट एम. आपका जो कर्म है वो आप करते रहो. वॉट एवर यू आर सब्जेक्टेड टू डू, कीप डूइंग दैट थिंग एंड लीव एवरीथिंग ऑन गॉड. कि यार ये बंदा मुझे जज करेगा, ओके, लेट हिम जज. कि यार ये नहीं हुआ तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, सेम ही मुंह है, दिखा देना. So this is like the most important thing, and mostly what I've seen is people don't pursue their dreams because they are too much embarrassed to fail, जो अभी हुए तक नहीं है. So make sure that you believe enough in yourself and you don't try to control anything, and the life will be much better. So I guess this is it about today, and after a long time I'm making this video, but I just loved making this video, and I hope that you guys might have enjoyed and got some information or some knowledge from my video. If you got that, then like this video, share it to your friends, give your suggestions in the comment box, and I'll see you the next time. Till then, stay safe and goodbye.